Hello everyone. Once again you are welcome in this online class of English literature. So once again we are going to discuss another poem. That one is Amanda, written by Robin Lane. So before continuing this poem, we will discuss about writer. So here Robin Lane is a poet who takes in his pen the everyday and universal happenings of life. Activities pertaining to small children are very dear to him as they represent innocence, love, smartness and their nature. तो यह मुख्यतः दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित जो कविताएं होती हैं उनकी रचना करते हैं और साथ ही साथ यह छोटे बच्चों से काफ़ी इनका करीबी रिश्ता होता है जो अपनी कविताओं में मुख्यतः जगह देते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंस, लव और स्मार्टनेस के प्रतीक होते हैं. दैट्स वाई इन एवरी पोएम ऑफ रॉबिन लेन यू कैन फाइंड आउटपुट ऑफ इनोसेंस, लव, स्मार्टनेस एंड द चाइल्ड स्टोरी. सो दिस इज अबाउट द रॉबिन लेन, द राइटर, द पोएट. So here this is the poem Amanda. So let us proceed. First stanza. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So dear student, such kind of incident always happens there in our household where we have to always hear scoldness of our parents, and we always thought that this is the hindrance in our freedom. हमेशा हमें अपने घर में, परिवार में ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती है कि यह न करो, वह न करो. इससे हम जो है हमारे ऊपर क्या व्यतीत होता है, हम समझते हैं कि हमारी स्वतंत्रता का हनन है, लेकिन क्या वाकई यह हमारी स्वतंत्रता का हनन है या कुछ और है. तो ऐसी समस्याएं हर एक बच्चे के साथ होती है कि उसके गार्जियन, उसके बड़े बूढ़े जब उसे फटकार लगाते हैं, डांटते हैं, हर चीज़ को कहते हैं कि यह न करो, वह न करो, तो उसे बुरा लगता है. तो वह जो है एक दूसरी दुनिया की कल्पना करता है. ही ऑलवेज इमेजिन अनदर वर्ल्ड वेयर इज फ्रीडम, वेयर इज हैप्पीनेस, एवरीवेयर there is no restrictions and foundation. So here Amanda is also thinking like that. If I were in such a beautiful world where there would be no restrictions, no foundation, and there I will be alone, free and joyfully living there. So in first stanza, the mother of Amanda says, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, and Amanda, and stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे उसकी जो माँ है उसे डांटती है, कहती है बेटा अपने नाखून को मत काटो. जैसे बच्चे होते हैं दांत से अपने नाखून को हमेशा चबाते रहते हैं, तो उसे वो मना कर रही, कहती है कि दिस इज़ रॉन्ग थिंग. डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच मीन्स बेंड करना. और कहती है बी स्ट्रेट, बी सिट डाउन वेरी स्ट्रेट, डोंट हंच योर शोल्डर्स. अपने जो कंधे उसे मत झुकाओ, तुम सीधे बैठो. एंड स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा. स्लाउचिंग मीन्स यू कैन कॉल letharginess. And further the mother of Amanda scolded her by saying, don't show letharginess, sit up straight, Amanda. These are the wrong things. So at every point we have to be scolded by our guardians. That's why every small children always thought that this is wrong thing, because they wanted to enjoy the freedom, they wanted to love the freedom. That's why they never like this slouching. When the mother of Amanda saying like this, at the same moment Amanda
began to see another world. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So here emerald means green. एमरल्ड मीन्स पन्ना होता है, पन्ना जो एक धातु होती है जो जिसका कलर ग्रीन होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। वेयर देयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और कह रहे कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे वो अकेली हो, वह समुद्र की दुनिया में कह रहे कि मैं काश एक जल परी होती, मरमेड मीन्स जल परी, जहाँ पे वह खुशीपूर्वक आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती, वहाँ पे कोई उसे रोक टोक करने वाला नहीं होता। सो दिस इज द पोएम stanza. This is the first and second stanza here given. So dear student, let us see the explanation in English. So this is the explanation of both stanza. So one of the parents sees Amanda biting her nails. The parents tells Amanda not to bite her nails. She is also not to bend her shoulders and to sit up straight. The parents nags Amanda for sitting lazily with her shoulders bent into a stoop. तो यहाँ पे अमांडा की गार्जियन है, वह जो है उसे डांट रहे हैं कि तुम अपने नाखून को मत चबाओ, मत खाओ। The parents tells Amanda not to bite her nails. She is also not to bend her shoulders. और आगे वो कहती हैं कि तुम अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो, सीधे बैठो। The parents nags Amanda for sitting lazily with her shoulders. और उसके बाद अमांडा के जो पेरेंट्स हैं, मदर है, वह उसे कहती है डोंट बी सिट हेयर लेजीली, बी समथिंग एनर्जेटिक, डोंट शो लेजी फेस एंड डोंट बेंड योर शोल्डर इनटू ए स्टूप। तो ये बातें जो है अमांडा की गार्जियन कह रहे हैं उसे, जैसा कि हमारे अमूमन ज़िंदगी में होता रहता है। हमारे जब हम बचपन में होते हैं तो हमें हमेशा ऐसी डांट फटकार सुनने को मिलती है। तो हमें अमांडा के जो पेरेंट्स हैं, जो उसकी मदर हो सकती है या उसके फादर, तो उसे वह डांट रहे हैं कि ऐसा मत करो। बट अमांडा, लेकिन वहीं पे जो अमांडा होती है वह क्या सोचती है? बट अमांडा इज़ लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम। लेकिन अमांडा अपने खुद के सपनों में लॉस्ट होती है। She imagines herself to be a mermaid drifting joyfully with the soft waves of the green sea. और वहीं पे अमांडा अपने सपनों की दुनिया में गुम होती है। and she is imagining that she is just like a mermaid drifting joyfully with happiness with the softness of the wave green sea. So here mermaid, like she was playing with the waves of the sea at that moment. She imagines that she is the sole inhabitant of the beautiful sea. और उस समुद्र की लहरों से खेलते हुए वह कल्पना करती है कि वह इस दुनिया की अकेली इकलौती है जहाँ पे कोई नहीं है। शी इज़ अलोन देयर, she is the sole inhabitant. Soul means alone, and she is sole inhabitant of the beautiful sea. और इस सुंदर समुद्र के दुनिया का वह अकेली इकलौती निवासी है। and there is no one to nag or disturb her, and she love to live there because there is no one to nag or disturb her. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई उसे डांटने वाला नहीं है, उसे टोकने वाला नहीं है। दैट्स वाई शी इमेजिन्स दैट इफ़ आई वर आल्सो देयर जस्ट लाइक अ मरमेड प्लेइंग विद द वेव्स ऑफ ओशियन। काश वह भी उस जलपरी के समान होती जो समुद्र की नीली नीली लहरों के साथ खेलती और अपना जीवन बिताती। उसे वहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। So this is the explanation of first and second stanza. So let us proceed further. Third stanza. Did you finish your homework, Amanda? So once again, one of the parents of Amanda asked her, Did you finish your homework? क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया अमांडा?
प्लीज टेल मी। जैसा कि हमारे घरों में भी होता है, हमसे भी पूछा जाता है कि आपने अपना काम किया कि नहीं, तो उस बच्ची से भी पूछा जा रहा है, उसके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। सो दिस इज द थर्ड स्टैंजा। नाउ इन ब्रैकेट, what she thought at that time, Amanda imagines something. What she imagines? Let us be see. I am an orphan roaming the street. I pattern the soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. और वो बच्ची क्या समझती है, क्या सोचती है जब उसके गार्जियन उसे पूछते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने अपना काम, अपना रूम साफ किया। टाइडी मीन्स टू क्लीन। एट दैट सेम टाइम सी इमेजिन समथिंग, वह दूसरी कुछ कल्पना में डूबी हुई है। लेट अस बी सी एक्सप्लेनेशन। द पेरेंट्स आस्क्स अमांडा इफ सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। शी इज आस्क्ड if she has tidy her room. She had been asked to clean her shoes also. The parent asked her if she has done that. तो इस स्टंजा में उसके पेरेंट्स उससे पूछ रहे हैं क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुमने अपने कमरे को साफ किया। और आगे पुनः उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुमने अपने जूतों को भी साफ किया कि नहीं किया। And the parent asked her if she has done that. So again and again she was being disturbed by her parents. She thought like that, I am disturbed by my parents, so they are snatching my freedom. वो समझती है कि मेरी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है कि तुमने अपने जूते साफ किए कि नहीं, अपना घर साफ किया कि नहीं, अपना कमरा साफ किया कि नहीं। So these are the hindrances always comes in her life. But what Amanda thought? But Amanda is lost in her own thoughts. लेकिन अमांडा अपने खुद के विचारों में गुम है, वह स्वप्न देख रही है, कल्पना कर रही है। She imagines herself to be an orphan. She imagines herself to be an orphan, and she thought that if I were an orphan. Orphan means होता है अनाथ, बिना माँ बाप के। तो अमांडा सोच रही काश मैं अनाथ होती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार टोक रहे हैं, इससे बेहतर है कि मैं अनाथ होती। सी इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन विथ नो पेरेंट्स टू नैग हर। क्यों अनाथ होना क्यों चाहती है? क्योंकि उसके दिमाग में यह है कि पेरेंट्स हमारी आज़ादी को छीनते हैं, हमें बार बार टोकते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो कहते हैं कि सोचती है कि काश मेरे पेरेंट्स नहीं होती, मैं अनाथ होती, मैं अकेली होती, ताकि मैं अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत कर सकती। वहाँ पे कोई मुझे डांटने वाला, मुझे कोई फटकारने वाला न होता। शी फील्स हैप्पी इन बीइंग एन ऑर्फन। दैट्स वाई शी ऑलवेज लव टू बी एन ऑर्फन, बिकॉज शी वॉन्टेड टू एन्जॉय द मोमेंट ऑफ हर लाइफ। शी इमेजिन्स दैट शी इज रोमिंग इन द स्ट्रीट विद बेयर फीट। और वहाँ पे पुनः वह कल्पना कर रही है कि वह जो है गलियों में बिना चप्पल के, बिना जूते के, वह गलियों में रोम कर रही है। रोम मीन्स मूविंग हेयर एंड देयर। तो यहाँ से वहाँ वह घूम रही है, बिना उसके पाँव में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। सी इज़ मेकिंग सॉफ्ट पैटर्न्स एज सी पुट्स हर फीट जेंटली इन द डस्ट। और जो गलियों में धूल जमी होती है, वह अपने नंगे पाँव से उस पर पैटर्न्स बना देती है, डिजाइंस बना देती है। And there is all silence about her, with no one to nag her, and there is silence everywhere because she loves silence, and no one is there to nag her, और वहाँ पे उसको स्कॉल्ड करने वाला कोई नहीं है। She is playing with the dust where there is silence everywhere, where there is silence everywhere. There is all silence about her, with no one to nag her. For the little girl, this silence is golden, and this freedom is so sweet.
And this silence is always loved by that small girl, Amanda. She thought that this is a golden for me, and freedom is so sweet for her. That's why she loved always freedom and silence. So silence is golden, and this freedom is so sweet for that small girl. Next stanza. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? So, once again, here, parents are asking these questions to Amanda. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? So, these are the lines spoken by the parent, one of the parents of Amanda. Now, at that moment, Amanda is imagining something. In this bracket, what she thought, I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. So here there is Rapunzel. So Rapunzel was a beautiful girl. Actually, in German, there is a beautiful story. In that story, there was a girl, orphan girl, living, who has got a very beautiful golden like hair, and through that hair, she laid down other one to ascend in that टावर वेयर सी यूज टू लिव। तो रमपंजल एक कथा है, कहानी है जर्मन भाषा में, और यह जो है एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है जिसके बाल सुनहरे होते हैं, जो बचपन से, जिसे एक चुड़ैल जो होती है, बीच जो होती है, जादूगरनी जो होती है, उसे एक टावर में बंद कर देती है, और उस टावर में उसके लिए जो खाना पानी आता था उसे पहुंचाने के लिए उस कोई दरवाजे नहीं थे, तो इसलिए वो अपने लंबे बालों को जो है नीचे लटकाती थी, जिसके सहारे वह जादूगरनी ऊपर जाती थी और उसे भोजन प्रदान कर दी थी। और अपने बालों के द्वारा एक बार जो है एक राजकुमार जो होता है उस बालों को देखता है और उसे पकड़कर अंदर प्रवेश करता है। एक लंबी कथा है। सो हेयर अमांडा इमेजिन्स टू बी रमपंजल। तो अमांडा रमपंजल बनना चाहती है। वो सोचती है काश मैं वो रमपंजल होती तो मैं भी वहाँ पे अकेली रहती उस टावर में, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट रमपंजल। एंड रमपंजल इज आल्सो नेम ऑफ वेजिटेबल। तो रमपंजल एक पौधे का भी नाम है, एक वेजिटेबल का भी नाम है जिसे लोग खाते हैं। तो उसी के आधार पे इस कहानी का नाम रमपंजल पड़ा है। सो लेट अस बी सी द एक्सप्लेनेशन। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ both the stanza. The parent sees Amanda eating a chocolate and tells her not to eat it. जैसे ही अमांडा चॉकलेट खाना चाहती है, खाती है, तब तक उसके गार्जियन जो होते हैं उसे डांटने लगते हैं, कहते हैं दिस इज नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर टीथ, दैट्स वाई डोंट ईट chocolate. The parent says that Amanda must not have forgotten the acne that she had got previously. और कहते हैं तुम्हें अपने मुहासों के बारे में याद होना चाहिए। ये चॉकलेट खाने से, मीठा खाने से यह खराब हो सकते हैं। दैट्स वाई Amanda, this is not good for you. You should not eat chocolate. However, Amanda is lost in her own dream. जबकि अमांडा अपने खुद के सपनों में अपनी अलग दुनिया में घूम रहती है। एंड डज नॉट लुक अप टू द पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की बातों पर ध्यान नहीं देती। एट दिस द पेरेंट्स फील्स इरिटेटेड, और इस बात को लेकर उसके पेरेंट जो होते हैं, उनका जो पेरेंट होते हैं, वह बिल्कुल इरिटेशन आ जाता है उनके अंदर। सो ही सेज दैट अमांडा शुड एट लीस्ट लुक एट हिम व्हेन ही इज स्पीकिंग टू हर। तो कम से कम उसे उनकी तरफ देखना चाहिए
वह क्या कर रहे हैं उसकी बातों को सुनना चाहिए, बट शी वॉज नेग्लेक्टिंग ऑल दिस बिकॉज शी इज ऑलरेडी लॉस्ट इन अ डिफरेंट वर्ल्ड वेयर देर इज Rapunzel like lady sitting alone in that tower without any nag, without any disturbances. But what Amanda thought, but Amanda remains lost in her dreams. लेकिन अभी भी अमांडा अपने सपनों में गुम है. And she imagines herself to be golden haired Rapunzel. और वह अपने स्वप्न में कल्पना करती है कि काश मैं भी उस रंपंजल की तरह होती और मेरे बाल बिल्कुल सुनहरे होते, गोल्डन मीन्स सुनहरे होते. हु लिव्ड इन अ कैसल एंड हैड टू केयर, और जहाँ पे एक टावर में उसे बंद कर दिया जाता उस रंपंजल को, जहाँ पे वो अकेली रहती है. वो अपने माता पिता से कभी नहीं मिल पाई क्योंकि बचपन में ही उस जादूगरनी ने उसे कैद कर रखा था. तो वो सोचती है काश मैं भी उस रंपंजल की तरह होती और मेरे पास जो बाल होते सुनहरे बाल होते. अमांडा इमेजिन्स दैट लाइफ फॉर रंपंजल मस्ट हैव बीन वेरी पीसफुल, और कहती है कि अमांडा की रंपंजल का जो जीवन रहा होगा वो बहुत ही पीसफुल रहा होगा, बहुत ही शांतिमय रहा होगा, एंड वंडरफुल, और बहुत ही आश्चर्यजनक रहा होगा, बहुत ही शानदार रहा होगा इन दैट टावर. हाउएवर शी सेज दैट शी वॉन्ट ले डाउन हर ब्राइट हेयर द वे रंपंजल. कहती है लेकिन अगर मैं रंपंजल होती तो कभी भी अपने सुनहरे सुंदर बालों को उस टावर से नीचे नहीं गिराती, नीचे नहीं करती ताकि कोई उसके ऊपर उस टावर में प्रवेश करता. क्योंकि रंपंजल जो है उस बाल को वहाँ से नीचे करती थी जिसके सहारे जो है वह जादूगरनी उस टावर में प्रवेश करती थी, क्योंकि एकमात्र रास्ता वही था, सारे दरवाजे बंद थे इसीलिए. तो कहते लेकिन मैं अगर होती उसके जगह तो मैं अपने इस सुनहरे बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराती ताकि लोग उसके अंदर प्रवेश कर दे. बिकॉज आई लव दिस साइलेंस, आई लव फ्रीडम वेयर नोबडी कैन डिस्टर्ब मी. ऑल द ट्रबल्स ऑफ रंपंजल एज वी नो हैड स्टार्टेड बिकॉज ऑफ हर डूइंग सो. कहती है रंपंजल की सारी समस्याओं का जड़ उसके बाल थे. जब वह बाल नीचे गिराती थी तो वह चुड़ैल अंदर प्रवेश करती थी, वह जादूगरनी प्रवेश करती थी, जिसके कारण उसकी सारी समस्याओं का जड़ जो है उसका यह मूर्खता पूर्वक व्यवहार था, जिसके कारण वह खुद समस्या में बंधी हुई थी. So this is the last stanza we are going to discuss. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So here, once again, one of the parent of Amanda says, stop that sulking at once. And she says, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody. Amanda, your behavior, your etiquette is always just like a moody-like person. You are always so moody. You never hear, you never pay attention upon our words. That's why you are just like a moody girl. Anyone would think that I nagged at you. और आगे वो कहते हैं anybody, कोई भी सोच सकता है I nagged at you, but this is not like that. So what is the explanation? Let us be see in English. The parent keeps talking to Amanda about the various do's and don'ts, but Amanda remains lost in her own dream. On the other hand, one of the parent is talking to Amanda, but Amanda was indifferent towards the parent. She was imagining something without paying any attention to that guardian. So Amanda remains lost in her own dreams. The parents thinks that Amanda is not responding because she is angry. और उसके बाद उसके पेरेंट ये सोच रहे हैं कि अमांडा रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करे क्योंकि वो गुस्से में है. He feels annoyed
and asks Amanda to stop sulking at once. And after that, the one of the guardian of Amanda feels annoyed, get annoyed, and asks Amanda to stop sulking at once. तो उसे वो कहते हैं कि अपना क्रोध, अपना जिद्दीपन तुम छोड़ो. He says that it has become a habit with Amanda to remain irritated always. And further, one of the parents says that this is the irritation always remaining with this Amanda. She always show her irritation, and this is not good for her. That's why, Amanda, please stop all these irritating life. On seeing her, one would say that the parent has nagged at her, and that is why Amanda is looking gloomy. गलत ये देखकर कोई भी कहेगा कि अमांडा के ऊपर उसके पेरेंट्स जाति कर रहे हैं और वो हमेशा उदास दिखती है, ग्लूमी दिखती है. उसे यह सब कुछ त्यागना होगा, छोड़ना होगा, अपनी बुरी आदतें बंद करनी होंगी. द पेरेंट्स डज नॉट वांट अमांडा टू गिव अदर्स सच एन इम्प्रेशन. और उसके पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि अमांडा का यह ग्लूमी फेस किसी दूसरों के सामने आए. ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं है. दैट्स वाई दे अगेन एंड अगेन वांटेड टू रिमाइंड हर दैट प्लीज़ इम्प्रूव योर वे ऑफ लिविंग. यू हैव टू compromise with it. This is not good quality, this is not good habit. They always say like that. So dear student, this is the explanation of all these stanzas. So here, this is very important poem. That's why we mentally prepared for this poem and try to prepare it very well so that you can do something better one in your examination. I hope you will do something better one in your examination. और इसी आशा विश्वास के साथ इस पोयम को हम यहीं समाप्त करते हैं. और एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा अपना बहुमूल्य समय देने के लिए. एंड थैंक यू वंस अगेन.